अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ जुमलाबाजी करते रहते हैं कि करप्शन का। अब क्या करप्शन हो रहा है, कैसा इनके मिनिस्टर्स वगैरह करप्शन में मुलविस हो रहे हैं, सारी बातें मोदी मीडिया छुपा रहा है। आते तो आ गया है, कानून बन गया है, पर किसी गवर्नमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। Prime Minister Narendra Modi says that corruption is a big evil and his government is committed to fighting against it. Whereas the Chief Minister of Karnataka says his government will not be a silent spectator if he sees any corruption in his state. But the question that is arising is, are the Prime Minister and Karnataka Chief Minister turning their words into action? In the past few years, it's observed that the key position of Information Commissioner has been lying vacant for a while. Neither the Modi-led central government nor the Siddaramaiah-led state government are appointing information commissioners. This has led to an increase in pending cases across the country. RTI activist Wazir Beg has been questioning the government about the long pending vacancies of information commissioners of the right to information. He says that this vacancy is weakening the RTI. He said that both the Prime Minister and Karnataka Chief Minister are busy making rhetoric statements but not taking any action on their words. The activist added that the leaders are only proving that they are systematically weakening and subverting the RTI Act. Thereby, they have not only built a blockage to questioning the governments, but also are violating people's right to information. Wazir Beg also referred to Chief Justice of India on the said subject, saying that the non-appointment of information commissioners in the CIC will not only undermine the very purpose of the RTI Act. Speaking on this issue, former Union Minister Dr. K. Rahman Khan said that the central and state governments are deliberately not appointing information commissioners to weaken and dilute the RTI Act, which is a fundamental right of the people. He added that people should stand up and challenge the government's action in the court. The RTI activists are hopeful from the Supreme Court that the information commissioners will be soon appointed and enable the hearing of RTI applicants to flow as per the procedure. See, RTI जो है गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट आते तो आ गया है, कानून बन गया है, मगर किसी गवर्नमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो कोशिश अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये कानून बनाई है वो ख़ुद इसमें तरमीम चाहती है और वो बहुत सा इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं करना चाहती। तो इसलिए हम इसको चैलेंज करना है। जब प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बना रहे हैं तो तब भी कोर्ट्स में हमें चैलेंज करना पड़ेगा, या ये इख्तियारात कम कर रहे हैं तब भी हम कोर्ट को चैलेंज करना पड़ेगा। यानी हम जो हमारे हुकूक़ हैं या कोई क़ानून ऐसा बना है जो आवाम को एक हक़ देते हैं तो हम उसको अदालत में नहीं ले जाते। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे चीज़ों को अदालत में ले जाना चाहिए, ले जाते हैं, ले जाना चाहिए ऐसे को। अगर ऐसा ये डिले कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। अब देखिए वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को बरसों से नहीं बना रहे थे, जब कोर्ट में मामला गया तो अब यहाँ कर्नाटक में 3 इंफॉर्मेशन वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया गया। अक्टूबर को हमारे मोहतरम DY चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक हुकूमत को 3 हफ्तों की नोटिस जारी की है RTI के सिलसिला में। अंजलि भारद्वाज करके बोल के एक RTI एक्टिविस्ट है जिन्होंने एक PIL दाखिल किया था। इसी तरह कई PIL दाखिल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार जो चाहे रियासती हो या मरकज़ी हो, दोनों ने ये तय कर लिया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्टिंग ना की जाए, ताकि आवाम करप्शन के जो सवालात किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जाए, उसका रोकने का मकसद है, मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत। इसी तरह जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में तो मोहतरम प्रशांत भूषण साहब ने जो वकालत दाखिल की थी, उनके आर्गूमेंट के बाद ये बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने RTI डेथ लेटर हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा
हुकूमत की तरफ से अगर कमिश्नर नामजद ना किए गए तो इसकी मिसालें ऐसी हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में विदाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और 7 वैकेंसीज खाली हैं और जो 4 वर्किंग कर रहे हैं वो नवंबर में उनकी वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो नवंबर 6 को जो रिटायर्ड होने का है वो वक्फा गुजर चुका है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिफंक्ट हो गया है आज की तारीख में। इसी तरह मुझे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत महाराष्ट्र में 1,15,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जहां पर सिर्फ 4 कमिश्नर काम कर रहे हैं। इसी तरह झारखंड में 2020 से कोई भी कमिश्नर नहीं है और वो वहाँ काम ही नहीं चल रहा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या हो रहा है। और इसी तरह त्रिपुरा में भी 2 साल से इसी तरह का हालत है। उड़ीसा में 3 कमिश्नर काम कर रहे हैं, जहाँ 16,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। वेस्ट बंगाल में 3 कमिश्नर काम कर रहे हैं, जहाँ 12,000 का कंप्लेंट पेंडिंग रखे गए हैं। इसी तरह बिहार में भी 2 कमिश्नर सिर्फ काम कर रहे हैं, 8,000 ये कंप्लेंट पेंडिंग है। अब रही बात कर्नाटका की, तो यहाँ सबसे बुरा हाल यह है कि कर्नाटका में सिर्फ 5 कमिश्नर काम कर रहे हैं और 6 कमिश्नर की वैकेंसी बाकी है। तकरीबन 40,000 कंप्लेंट यहाँ पर कर्नाटका में पेंडिंग है। इससे मालूम होता है कि हमारे सरकारें, चाहे रियासती हो चाहे मरकज़ी हो, लोगों को अपने हुकूक़, आरटीए के हुकूक़ हासिल करने के लिए रोकने और गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही नाजायज़ चीज़ है। अब देखना यह है कि 3 हफ्तों के बाद, अब तकरीबन 6-7 दिन रह गए हैं 3 हफ्ते गुजरने के, मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या हल्फनामा दाखिल करेगी। देखिए, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ जुमलाबाजी करते रहते हैं कि करप्शन का। अब क्या करप्शन हो रहा है, कैसा इनके मिनिस्टर्स वगैरह करप्शन में मुलविस हो रहे हैं, सारी बातें व्हाट्सएप के ज़रिए आ रहे हैं। ये गोदी मीडिया छुपा रहा है ये तमाम बातों को। ये सब खोखले दावे हैं। हत्ता के रियासती हुकूमतें भी अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर रियासत में करप्शन है, हर मरकज़ी हुकूमत में करप्शन है। उसको रोकना और आवाम को मालूमात है, हक़ मालूमात से रोकने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश को सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है कि जनाब DY चंद्रचूड़ साहब अपना फ़ैसला सुनाते हुए हुकूमत पर दबाव डालकर कमिश्नर नामजद करने की कोशिश करेंगे। Subscribe to Daily Salah Digital for more such updates.